ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स एंड लिथियम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर। जहां पर हम एंटीसाइकोटिक्स की बात कर रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक्स के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइकोसिस है क्या। ठीक है, साइकोसिस, पहली चीज तो ये कि साइकोसिस ऑन इट्स ओन कोई बीमारी या कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर नहीं होता। इट इज बेसिकली अ सिम्टम। ठीक है, और इसमें आपका प्रॉब्लम आता है, आपकी जो परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, उसमें मसला आता है आपको। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको 5 बेसिक सेंसेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपकी सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हेयरिंग और आपकी सेंस ऑफ स्मेल आ जाती है। ठीक है, इन 5 सेंसेस के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपके इर्द गिर्द जो है वो एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हो रहा है। ठीक है, और इनको फिर आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर उसको पता चलता है कि यार ये इसकी जो सेंसेशन आ रही है, इसकी नौयत क्या है, आया इसके ऊपर कोई रिएक्शन बनता है, नहीं बनता। ठीक है, साइकोसिस के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो सेंसेशन को परसीव करने वाला अमल जो होता है ना, ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, यू टेंड टू इमेजिन कह लो या इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग आपकी हो जाती है, एक एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाती है कि आपको अंदाजा ही नहीं रहता कि आया ये चीज सच्ची है या आपको सिर्फ महसूस हो रही है आपको। ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन टू ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर साइकोसिस, तो उससे पहले तुम लोगों को मैं एक चीज जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। लेट Yourself out with friends. Visualize yourself out with friends. You're at your favorite restaurant waiting to be served. Suddenly, you notice people are watching you. You begin to hear people whisper your name. You know they're about to do something. Your friends don't notice that you're all about to be harmed. You mention what's happening to your friends, and they're confused. You have to make them understand quickly before something bad happens. If you've experienced something like this, it could be psychosis. Did you know that a little over 3% of all people will experience psychosis at some point in their lives? That's over 11 million people in the United States alone. In any given year, about 100,000 teens and young adults will experience psychosis. Most people have their first experience with psychosis between the ages of 15 and 30. People experiencing psychosis can have all or a few symptoms. Psychosis occurs across. So, what is psychosis? Psychosis is a word that describes what happens when people are experiencing and perceiving the world around them differently than others. These differences can include seeing things that are not there, such as people, animals, colors, or shapes, even shadows, hearing voices or sounds that other people do not hear. Disorganized thinking that can make it difficult for other people to understand what they're trying to say. Sharing thoughts or beliefs that others who are close to them might find strange or unusual, such as believing that they have special powers, or that they're being watched, followed, or spied on, or that they are receiving messages through the television or internet that they feel are meant just for them. People who hear and see things that others do not may appear to be distracted or take a few moments to respond when asked a question. Sometimes, people experiencing psychosis may have a hard time concentrating, or their thoughts can get mixed up. Every person's experience with psychosis is unique. Unfortunately, psychosis is a word that can be misunderstood. A common misconception is that people with psychosis are dangerous or crazy. People experiencing psychosis are more likely to be withdrawn, confused, or frightened than violent. Another myth is that psychosis will not get better. Symptoms of psychosis can be managed through support, therapy, and by taking medications. People who have experienced psychosis can go on to lead healthy, productive lives. Recovery from psychosis is achievable through early intervention. Studies have found that the earlier someone gets help with psychosis, the better their outcomes will be. इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटीसाइकोटिक्स पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। एंटीसाइकोटिक्स में आपके क्लासिकल ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है, जो बिलखसूस D2 रिसेप्टर के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी शो करते हैं, और नए ड्रग्स जो रिलेटिवली रीसेंट डेवलपमेंट जिनकी हुई है, ठीक है, उसमें आपके मोस्टली 5-HT2 या हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान वाले जो रिसेप्टर्स को
के साथ बाइंड करते हैं और ज़्यादा अफिनिटी शो करते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके क्लासिकल ड्रग्स हैं उसके अंदर हैलोपेरिडोल, ठीक है, और क्लोरप्रोमाजीन, ये ज़्यादा आपको प्रोटोटाइप्स जो हैं वो सुनने में आपको मिलेंगे, जबकि जो न्यू ड्रग्स हैं उसमें आपको ज़्यादातर क्लोज़ापिन और रेस्पेरिडोन जो है वो आपको ज़्यादा सुनने में मिलती है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपके स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है शिज़ोफ्रेनिया, दिस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर्स, या इट्स अ वेरी वास्ट कलेक्शन ऑफ सिम्पटम्स एंड साइंस जो मरीज़ आपका जो है वो एक्सपीरियंस करता है। ज़रूरी नहीं कि ये ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ही जो है वो इस्तेमाल हों, ठीक है। दूसरी जो आपके साइकोसिस रिलेटेड चीज़ें हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को डिप्रेशन जो होती है खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाती है, तो उनके अंदर भी साइकोसिस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें साइकोसिस होना शुरू हो जाए आपको, उसके अंदर आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि द वीडियो जो अभी मैंने प्ले की है अभी उसकी आवाज़ आपको आई हो, क्योंकि उसमें उसने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया सारा, इसमें जो हेलुसिनेशंस होती हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो सारे के सारे आपको जो हैं वो बहुत इजीली आपको समझ आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। ये एक और वीडियो है, दिस शोज के आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। About 2 years ago, I started to notice some changes in myself, but I didn't understand what was going on. I had been working at my first real job for about a year. Things were going well at first, but then I started having a hard time concentrating. After a while, I also started to see objects move on their own. As time went on, I started to hear a painting that I received from a friend talk to me, and it wasn't very long before I talked back to it. Also, people sometimes didn't seem to understand me when I talked to them, and I started to really struggle at work. It was only much later, about a year after first noticing the symptoms, that I talked with a psychiatrist and became aware of what was taking place. My psychiatrist told me about a mental illness called schizophrenia. Schizophrenia is a serious mental health disorder. It can significantly impact how someone acts, thinks, and feels. It interferes with the logic that they would typically use, and they can begin to act in ways that seem strange to other people. For example, I really believed that I was seeing objects move on their own, and I could talk to them. I now know that I was having hallucinations and delusions, some of the symptoms of schizophrenia. Everyone with schizophrenia has their own unique experience, but the condition includes a few specific types of symptoms. One symptom is hallucinations, when your senses perceive something that isn't really happening. Hallucinations can happen with any of our senses, like seeing things that aren't there, known as visual hallucinations, or feeling something is on or happening to your body that isn't really there, called tactile hallucination. Hallucinations can even extend to one sense of smell, referred to as olfactory hallucinations. Auditory hallucinations, like hearing voices, is the most common kind of hallucination in schizophrenia. The voice I heard from the painting was so clear, just like someone was standing next to me talking to me. I had no control over the voice. I couldn't make it go away on my own. People living with schizophrenia might also have delusions or strong beliefs in things that are not true. This might be a belief that another person or group is out to harm you or is controlling you or your thoughts. Another example of delusion is that you may think you're a famous person from history, or that you're in a relationship with a famous person. People living with schizophrenia may also have symptoms that impact their ability to think clearly. This is called disorganized thinking and is typically seen in the way a person talks. For me, I would talk about things that did not quite fit reality. People living with schizophrenia might also have a hard time focusing or paying attention. I frequently bounced from one topic to other unrelated topics, and people thought my answers to their questions were odd.
Disorganized behavior is another symptom of schizophrenia. For me, I acted in more and more unpredictable ways, like getting agitated very quickly. For others, this could manifest by repeating a specific motion or phrase out loud, over and over again. For people living with schizophrenia, they might look like they don't have the usual range of emotions. This is called flat affect. I was having a tough time with my mood. I didn't enjoy the things I used to. It was really difficult relating to other people, and I didn't want to be around them. The people that I did interact with were confused by what they saw happen. ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आती इस फिल्म की तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू गाइस डू वॉच दिस मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड. ठीक है, एक एक इसमें जो सिम्टम है ना बड़ा खूबसूरती से जो है वो दिखाया गया है ये. ठीक है, रसल क्रो की बेहतरीन फिल्मों में से एक है, और अगर आप लोगों को मजीद टाइम मिले तो डू वॉच शटर आइलैंड एज वेल. ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्टडिंग, मेजर केमिकल सब ग्रुप्स जो कि एंटी साइकोटिक के तौर पर एक्ट करते हैं पुराने एंटी साइकोटिक्स के अंदर, उसमें एक फिनोथायाजीन्स होते हैं आपके. ठीक है, जिसमें आपका क्लोरप्रोमाजीन आ जाता है. ठीक है, और थायोजिनथीन्स, और फिर ब्यूटायरोफिनोन्स जिसमें आपका हेलोपेरिडोल आ जाता है. ठीक है, जो आपके सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, जिसका हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, दे आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन शिज़ोफ्रेनिया. ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो कदरे कम होते हैं पुराने वाले एंटीसाइकोटिक्स की निस्बत. ठीक है, अगर हम एंटीसाइकोटिक्स के फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर बात करें, ओरल अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है. यही वजह है कि आप इसको ओरली जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो ये सीएनएस के अंदर आसानी जो है वो मूव कर जाता है. ठीक हो गया. मेटाबॉलिज्म जो है इसका वो लिवर एंजाइम्स के थ्रू होता है, और एलिमिनेट होने से पहले ये लिवर के अंदर जाकर एक्सटेंसिव इसकी मेटाबोलाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन होता है इसका, और इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है. यही वजह है कि आप एक गोली देते हैं एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू मेंटेन द रिक्वायर्ड डोज. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम इसके बात करें तो हमने बात की थी डोपामीन हाइपोथेसिस के ऊपर. ठीक है, डोपामीन हाइपोथेसिस, या अगर ये सिंपल हाइपोथेसिस यहाँ पर कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारी किताबों के मुताबिक, माइंड यू हमारी किताबों के मुताबिक, हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है कि शिज़ोफ्रेनिया के अंदर ये होता है और एंटीसाइकोटिक्स ये जाकर करती हैं जिसकी वजह से शिज़ोफ्रेनिया के इफेक्ट्स जो होते हैं वो डिमिनिश हो जाते हैं या कम हो जाते हैं. हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो that is based on all the information that we have so far, but it still requires rigorous testing जिसके बाद ये जाकर hypothesis जो है वो valid होता है. ठीक है, और इस hypothesis में ये लिखा हुआ है कि ये जो schizophrenic disorder है, ठीक है, this is caused by excess of functional activity of the neurotransmitter dopamine. ठीक है, और डोपामीन का भी कुछ स्पेसिफिक, कुछ मखसूस जगहों के ऊपर ब्रेन के अंदर इसका असर जो होता है या इसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा आता है. ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो कि डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन के मुख्तलिफ जो कह लो कि सेंसेशंस और जो फंक्शंस हैं उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रिलेटेड होता है. पेन का भी इससे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है इसका. ठीक है, तो ब्रेन के कुछ एरियाज के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और इसका जो सर्कुलेशन है उसका एक पूरा फ्लो होता है जो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन को ये जाकर जहाँ से ये गुजरता है. ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है कि डोपामीन का एक्सेस हो जाता है. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस हाइपोथेसिस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. क्यों? क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं दे आर पार्टली इफेक्टिव इन मोस्ट पेशेंट्स. ठीक है, और जो इनकी जो अफिनिटी होती है वो स्पेसिफिकली D2 रिसेप्टर्स के अलावा जो है वो दूसरे उनके साथ भी ये लोग अपनी अफिनिटी जो है वो अच्छी शो करते हैं. लेकिन जो पुराने वाले आपके होंगे या जो ओल्डर एजेंट्स होते हैं दे आर मोर हैविंग मोर अफिनिटी विद द D2 रिसेप्टर्स. ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा.
अच्छा जी, कमिंग बैक, बात हो रही थी डोपामीन हाइपोथेसिस की। तो डोपामीन हाइपोथेसिस के मुताबिक शिज़ोफ्रेनिया जो होता है वो डोपामीन के एक्सेसिव अमाउंट की वजह से और उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से जो होता है वो शुरू होता है। लेकिन दिस इज पहली बात तो ये कि दिस इज जस्ट कह लो इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको अभी प्रूव होने में और इसके ऊपर इसकी फेवर में साइंटिफिक डेटा अभी मजीद इकट्ठा हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस हाइपोथेसिस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। उसकी वजह ये है कि अगर आप सिर्फ ड्रग्स के ऊपर, एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर अगर आप रिलाय करते हो ना क्लिनिकली, तो शिज़ोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं उनके ऊपर उसका इतना अच्छा असर नहीं आता, ठीक है। बल्कि कुछ केसेस में तो असर उतना जो है वो बेहतर आता ही नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, डोपामिन रिसेप्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे। हमने कहा था कि D2 के साथ जो आपके ओल्डर एजेंट्स हैं उनका एक ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा तगड़ी उनकी एफिनिटी जो होती है वो उनके साथ होती है, ठीक है। डोपामीन के 5 रिसेप्टर्स हैं, कि तुम लोगों को पता है, D1, D2, D3, 4 एंड 5, ठीक है। और हर एक के अंदर जो है वो जी प्रोटीन कपलिंग जो है वो आपको देखने में मिलती है। अब बात हमने पहले की कि D2 रिसेप्टर के साथ इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि D2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है? कॉर्डेट प्यूटामेन, न्यूक्लियस एकम्बेंस, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस। अब ये तमाम वो एरियाज हैं जो कि आपके ब्रेन के इंतहाई इंपॉर्टेंट और ऐसे फंक्शंस जो आपके इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होते हैं, उनको ये जो है वो सारे को देखते हैं। और यहीं से जो डोपामीन की एक्सेसिव जो रिलीज होती है वो होती है और फिर पूरे ब्रेन के अंदर ये सर्कुलेट करती है, ठीक है। ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स की जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनकी D2 रिसेप्टर के साथ अफिलिएशन कह लो या अफिनिटी कह लो, वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द न्यूअर एजेंट्स, ठीक है। अगर आप इस में देखो टेबल के अंदर, दिस इज फ्रॉम कैजन, तो आपको ये पता चलेगा कि हेलोपेरिडोल ये ओल्डर एजेंट है, ठीक है। फिनोथायजीन्स, थायोजेंथीन्स, इनकी D2 के साथ अफिनिटी देखो, प्लस का मतलब है पॉजिटिव, और ज़्यादा प्लस होंगे तो ज़्यादा अफिनिटी होगी, ठीक है। ये देखो, वेर एज जो आपके नेगेटिव या माइनस का जहां पर है साइन, ठीक है, इट मीन्स कि नो इफेक्ट। क्लोजापिन इज अ रिलेटिवली न्यूअर एजेंट, उसका D2 ब्लॉकेज नहीं होता उसका, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके ये H5HT2 वाले हैं, उनके साथ ये आपका क्लोजापिन और आपका ओलेंजापिन वगैरह ये रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी एफिनिटी और ज़्यादा अच्छा ब्लॉकेज जो है वो करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। एक और चीज अब आप लोग ज़हन में रखें कि कंपेयर टू द डोपामीन हाइपोथेसिस, ठीक है, जो नए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं दे मे शो अप अ सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 5HT2 का ताल्लुक जो होता है वो सेरोटोनिन रिलीज के साथ होता है और ये यहाँ पर इसके साथ ज़्यादा बेहतर ब्लॉकेज जो है वो शो कर रहे हैं कंपेयर टू दी ओल्डर वंस, ठीक है। वीक इसके साथ रिलेशन आ रहा है कंपेयर टू दीज वंस, ठीक हो गया। लिहाजा अगर तुम लोगों से कोई मोड ऑफ एक्शन के ऊपर बात करता है तो तुम ये डोपामीन हाइपोथेसिस बता सकते हो कि जी दिस इज सिंपली हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स के जो आपका फंक्शनल जो एक्सेसिव एक्टिविटी होती है डोपामीन की, उसकी वजह से जो है वो शिज़ोफ्रेनिया जो है वो देखने में आता है। लेकिन जब आप एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, अगर आप ओल्डर वंस देते हैं जिसमें आपके ये आ जाते हैं सारे हेलोपेरिडोल वगैरह, ठीक है, तो दे ब्लॉक सिग्निफिकेंटली D2, whereas the newer ones उनके अंदर जो है वो D2 ब्लॉकेज उतनी नहीं है कंपेयर टू 5HT2 रिसेप्टर ब्लॉकेज, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ हाइपोथेसिस और इसके ऊपर जो है मजीद साइंटिफिक डेटा एंड रिसर्च नीड्स टू बी डन, ठीक है। अब कमिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ डोपामीन, ठीक है, या एंटीसाइकोटिक्स। डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकेज तमाम एंटीसाइकोटिक्स का मेन फंक्शन है। तमाम एंटीसाइकोटिक्स का जो एक्चुअल जो उनका काम है वो यही है कि उन्होंने सिंपली जाके डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देना है, चाहे वो नया वाला है चाहे वो पुराने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये नए वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, और पुराने वाले भी कर रहे हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वो ये है कि मीजोकोर्टिकल मीजोलिम्बिक डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज, ठीक है। मीजोकोर्टिकल मीजोलिम्बिक पाथवेज, ये वो तमाम पाथवेज हैं जो आप न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ के आए हुए हो,
ठीक है, और ये आपके मूड से लेकर आपकी एपेटाइट और जो जितने भी आपके मेन आपके फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी ब्लॉकेज से आपके एंटी साइकोटिक इफेक्ट जो होता है उनका वो आता है उनका। ठीक है, और यही वजह है कि चूंकि ये एमिसिस को भी इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि ये कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन होते हैं आपके, जहाँ से आपकी वॉमिटिंग वाला रिफ्लेक्स जो होता है वो कंट्रोल होता है, उसको भी ये जाकर ब्लॉक करवाता है, जिसकी वजह से आपके जो एंटी साइकोटिक्स हैं दे ऑल्सो एक्ट एज एंटी एमिटिक्स। क्लिनिकली वही बात कि शिजोफ्रीनिया की मैनेजमेंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, आपके जो नए एंटीसाइकोटिक्स हैं जिसमें आपका रेस्पेराडोन और क्लोजापिन वगैरह आते हैं, ठीक है, उसको आप लिथियम के साथ कॉम्बिनेशन में देते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। अब मेनिया क्या चीज़ है उसके ऊपर आगे चल के इंशाल्लाह भी बात करते हैं। ठीक है, बायपोलर डिसऑर्डर की मेंटेनेंस ट्रीटमेंट के लिए भी आप ये दे सकते हो। बायपोलर क्या होता है इसके ऊपर भी बात करते हैं। और जाइल्स डिला टूरे सिंड्रोम जो है हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं। ये बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं किसी भी स्पेसिफिकली आपके फेस की, और उसमें ये हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था, आपका अल्लाह भला करे, ये बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह पढ़े थे, वो भी इसके अंदर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। टॉक्सिसिटी की जहाँ तक बात है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। बंदे को पार्किंसन लाइक उसकी अपीयरेंस हो जाती है। पार्किंसंस में आपको याद होगा देयर इज मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर्स आते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया होता है। ठीक है, टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है। दिस इज टार्डिव डिस्काइनेसिया, और इस खातून के स्पेसिफिकली लिप्स की तरफ देखिएगा। ठीक है, इसका लिप्स और इसका जो ऑक्सीपिटल, ये सारे सॉरी, ये जो इसका फेस और इसके लिप्स और इसका ये जो एक पाउट सा यहाँ पर बन रहा है, दिस इज नोन एज टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, ये एक मुसलसल एक कंट्रैक्शन, एक ट्रेमर लाइक स्टेट के अंदर जो है वो ये रहते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी या ओवर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ आपके जो हैं एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स भी आते हैं इसमें। ठीक है गाइस, इन केस लेक्चर अगर खत्म हो जाता है तो मैं दोबारा तुम लोगों को लिंक भेजूंगा, वो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एंडोक्राइन इफेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो एंडोक्राइन इफेक्ट्स के ऊपर आपका हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, गायनेकोमेस्ट्रिया, ठीक है, एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया सिंड्रोम, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ये तमाम आपके जो हार्मोनल आपके कंट्रोल में चीज़ें आती हैं वो सारी डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, एंड देन देयर इज द मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिक सिंड्रोम। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिक नाम से पता चल रहा है कि देयर इज इंक्रीज्ड मसल रिजिडिटी। ठीक है, स्वेटिंग खत्म हो जाती है, फीवर हो जाता है, हाइपर पायरेक्सिया जिसको आप कहते हो। ठीक है, एंड देयर इज ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कि आपके जो स्वेटिंग और सारी हो जाता है जिससे आपकी जो कूलिंग होती है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड देन देयर इज सेडेशन। ठीक है, बंदे के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, एक नींद किसी उसको जो होती है, कैफियत होती है उसको। सेकंड जो उसके अंदर है ड्रग, दैट इज लिथियम। ठीक है, एंड दिस अदर देन अलोंग विद द अदर ड्रग्स जो कि हम यूज करते हैं बायपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, बायपोलर डिसऑर्डर चीज क्या होती है? बायपोलर डिसऑर्डर, बाय मीन्स टू, ठीक है, और पोलर यानी कि पोलर इज बेसिकली रिट्रीव फ्रॉम द वर्ड पोल, यानी कि दो मुख्तलिफ जो आपके डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं ना, आपकी ऑपोजिट एक्सट्रीम्स हैं आपकी, ठीक है, वो आपको देखने में मिलती हैं। अगर कोई बंदा खुश होता है तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उससे अपना आप संभाला नहीं जाता, जिसको हम मेनिया कहते हैं उसको। ठीक है, उससे खुशी कंट्रोल नहीं हो रही होती। ठीक है, और उस खुशी की अपेरेंटली कोई वजह होनी ज़रूरी भी नहीं होती। ही फील्स एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज नोन एज मेनिया। ऑन द अदर हैंड वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो बिल्कुल डाउन एंड आउट, और बिल्कुल वो जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, और बिल्कुल जो है डिप्रेशन की जो एक्सट्रीम पीक होती है उसके ऊपर चला जाता है। अब ये दोनों जो कैफियात है ना, ये कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, मेनिया भी और आपका डिप्रेशन भी। ठीक है, तो ऐसा बंदा जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें ऑल्टरनेटिवली पाई जाएं, ठीक है,
पहले मीनिया की स्टेज में जाएगा, फिर एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर मीनिया की स्टेज में चला जाएगा, फिर एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, इस ऐसे पेशेंट को हम बायपोलर पेशेंट कहते हैं, और जिस बीमारी जो होती है इसको हम बायपोलर डिसऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक हो गया। लिथियम जो होता है, दिस इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिक फेज। ठीक है, कि जो मेनिया का आपका फेज है उसके अंदर लिथियम इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इसके अलावा अक्यूट इलनेसेस और जो प्रिवेंशन होती है बायपोलर की, बिलखसूस मेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड्स की, उसमें लिथियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है तुम लोगों को कि लिथियम इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ bipolar disorder, specifically manic phase of bipolar disorder, specifically manic phase of specifically depressive phase of manic disorder of bipolar disorder। ठीक है, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि मेनिक फेज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ये। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जस्ट लाइक आपके जो एंटीसाइकोटिक्स थे, ये भी गट से बहुत आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और आसानी जो है वो बॉडी वाटर में पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और किडनीज इसको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। इसकी भी हाफ लाइफ जो है वो 20 आवर्स तक है, विच इज़ सफिशेंट, और आप इसको वंस अ डे जो है वो आसानी एडमिनिस्टर कर सकते हो आप उसको। जहाँ तक इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी जो है वो कोई क्लियर कट या बहुत सीधे अल्फाज में या कोई बहुत जिसको कहते हैं ना कि एविडेंस के साथ लिखा हो, ऐसी कोई इसमें भी बात नहीं है। ठीक है, इसका भी जो है वो पुअरली अंडरस्टूड मैकेनिज्म है, लेकिन ये क्या काम करता है, ये एंजाइम इनहिबिशन करवाता है। ठीक है, वो एंजाइम्स जो कि आपके फॉस्फोइनोसिटाइड्स की रिसाइकलिंग के लिए यूज होते हैं ना, ठीक है, ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करवाता है ताकि आपके फॉस्फोइनोसिटाइड्स जो है वो ना बन सकें। ठीक है, अब ये फॉस्फोइनोसिटाइड्स को ब्लॉक करने से, उनको खत्म करने से क्या होता है कि आपके जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं ना, वो आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके सेकंड मैसेंजर ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे तो बहुत सारे आपके जो मैकेनिज्म्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। और बिलखसूस ये टारगेट करता है फॉस्फोटाइड डिलियोसिटोल बिसफॉस्फेट, ठीक है, विच इज PIP2। जब आपका PIP2 ब्लॉक होता है तो आपका इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 और डाइसाइल ग्लिसरॉल DAG, ये दोनों आपके खराब होते हैं। ये एक डायग्राम मैंने फिर से कार्डजंग से उठाई है, ये देखो जरा। ठीक है, दिस इज इनोसिटोल, और इसने आगे जाकर इसके साथ PIP बना देना है, PIP ने PIP2 बनाना है। PIP2 जब बनेगा तो वो आपका यहाँ डायसाइल ग्लिसरॉल DAG और आपका IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बना रहा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप लिथियम देने से इस जो आपका फॉस्फोटाइडल आपका सॉरी आपका जो फॉस्फोइनोसिटाइड है उसको आप ब्लॉक करवाते हो। ये देखो फॉस्फोइनोसिटाइड यहाँ ब्लॉक हो रहे हैं। जब ये साइकिल यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, आपका DAG नहीं बनेगा, आपका IP3 नहीं बनेगा, आपके इन शॉर्ट सेकंड मैसेंजर्स ही नहीं बन रहे आपके। जब आपके सेकंड मैसेंजर्स नहीं बन रहे तो आपके बहुत सारे रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हैं वो बंद हो जाएंगे, स्पेसिफिकली जो आपके जी प्रोटीन कपलिंग के साथ काम हो रहा है आपका। ठीक है, इसका क्लिनिकल यूज मैंने पहले बात की कि मेनिक डिप्रेसिव या बायपोलर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होता है ये, और बिलखसूस जो मेनिया फेज होता है उसको कंट्रोल करने में काम आता है ये। ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस थेरेपी का मतलब है कि द पेशेंट नीड्स टू टेक अ स्टेडी अमाउंट ऑफ लिथियम ताकि उसका मेनिक बिहेवियर जो है वो कंट्रोल में रहे, उसके मूड स्विंग्स जो बहुत ज़्यादा आते हैं वो कंट्रोल में रहे। जहाँ तक टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो इसके अंदर आपको बहुत टिपिकल CNS टॉक्सिसिटी आपको देखने में मिलती है। आपको ट्रेमर्स, सेडेशन होती है, दिस एटेक्सिया, एफेजिया, थायराइड की इनलार्जमेंट भी हो सकती है इससे। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकती है, क्योंकि हमने पीछे कहा था कि ये जो है आपका रीनल क्लियरेंस जो है इसकी वो होती है, एंड दैट टू एट 1/5 दैट ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है, इसीलिए ये आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस भी कॉज कर सकता है। और चूंकि इसके अंदर रीनल इन्वॉल्वमेंट आ गई है, तो जिस भी चीज़ के अंदर रीनल इन्वॉल्वमेंट और रीनल क्लियरेंस होती है तो उसमें देयर आर चांसेस कि उसके अंदर एडीमा भी आ सकता है। ठीक है, बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू स्टेट कि वैल्प्रोइक एसिड के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ चुके तो उसका जिक्र मैं कर देता हूँ। वैल्प्रोइक एसिड एक और ड्रग होती है
ठीक है, वो भी लिथियम के साथ इस्तेमाल की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, और उसको आप ड्रग ऑफ चॉइस तो प्रॉब्ली नहीं कहोगे, लेकिन उसको अगर आप लिथियम के साथ दें तो आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर।